Welcome to my channel AK Mechanical Lectures. Today I have brought a new updates for you regarding the vacancy in Wales for B or BTech candidate. Here you can see that the vacancy is for trainee engineer या trainee officer 1 and second project engineer 1. In that it is written that for trainee engineer 1 year tenure which may be extended up to maximum 3 years including initial period and subjected to project requirement for its SBU Bell Ghaziabad for consolidated remuneration of 25,000 पर मंथ. इनिशियली आपको 1 ईयर के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा और अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट ये मैक्सिमम 3 ईयर तक का हो सकता है. एंड सेकेंड वन दैट इज प्रोजेक्ट इंजीनियर. In that it is initially for up to 2 years and can be extendable up to maximum 4 years. Same according to project requirement for its SPU and Bell Ghaziabad for consolidated remuneration of 35,000 per month. यहाँ पे देख सकते हैं for trainee engineer which branch is eligible, that is EC mechanical, computer science, finance also. Here the seat distribution is also given, that is for EC it is 40, mechanical 11, computer science 19 and finance 6. क्वालिफिकेशन फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर BTech होना चाहिए आपका. यदि EC के वैकेंसी के लिए अप्लाई करो तो EC में BTech होना चाहिए, मैकेनिकल तो मैकेनिकल में होना चाहिए BTech और कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए. यहाँ पे मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है दैट इज 25 ईयर्स फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर. And in that the relevant experience is minimum 1 year or more than that. तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपका जो है जनरल के लिए 35 है, OBC के लिए 19, SC के लिए 10, ST के लिए 5 एंड EWS के लिए 7. ये रिजर्वेशन आपका दिया हुआ है कि जनरल का 35, ये क्या है आपका 7. टोटल सीट कितनी है 40, 11, 55, 19, 74. तो 74 इन दैट इफ यू ऐड 35 प्लस 19 दैट इज 54, 54 प्लस 10 64, 64 प्लस 5 67. According to seat the seat for different categories it is on that. For general including all branch general 35 है, OBC आपका 19, SC 10, ST 5, EWS का 7 है. और जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे उसका रिलेवेंट आपको सर्टिफिकेट बना के रखना है. एंड ये ट्रेनिंग ऑफिसर 1 के लिए आपका जो 6 वैकेंसी है इसमें आपका 2 ईयर फुल टाइम MBA होना चाहिए. एंड सेकेंड वैकेंसी इज फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर 1. In that the branches which is eligible, that is EC mechanical, computer science, electrical, civil, aeronautic, that's all. Seat is also given, that is for EC 30 seats, mechanical 10, computer science 17, electrical 1, civil 2 and aeronautical 1. क्वालिफिकेशन सेम है आपका BTech या BSc इंजीनियरिंग होना चाहिए 4 ईयर्स का. मैक्सिमम जो एज है आपका दैट इज 28 ईयर्स and 2 years relevant industrial work experience होना चाहिए. In that also the seat distribution for different categories given. Age relaxation is 3 years for OBC candidate, 5 years for SC ST and 10 years for PWD candidate. Already it's mentioned in the vacancy matrix what the qualification required. Here you can see that for training engineer for different you can see that for different branches there is different area in which the experience will be countable. That is for EC you can see that experience in analyzing and debugging analog digital, that is all the area. If you have experience in that then you will be preferred. Same mechanical relevant experience in different areas, if you have experience in that then you will be preferable, desirable. That is computer science also the different areas is given, electrical also, civil also, that is for project engineer. दिस इज एरोनॉटिकल के लिए आल्सो है आपका दिया हुआ
knowledge experience of aeronautical standard design development of product that's एंड ट्रेनिंग इंजीनियर फाइनेंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी देख सकते हो आप एक्सपीरियंस इन वेरियस एक्टिविटी है ऑफ फाइनेंस अकाउंट लाइक बजटिंग MIS रिपोर्टिंग कॉस्ट एनालिसिस एट्सेट्रा। आपका क्वालिफिकेशन जो है जनरल OBC एंड EWS के लिए फर्स्ट क्लास चाहिए और पास चाहिए आपका SC ST के लिए। ये भी मेंशन है कि कैंडिडेट हुई डिसिप्लिन और स्पेशलाइजेशन मेंशन इन दियर डिग्री सर्टिफिकेट डजंट टैली विद द एबव मेंशन डिसिप्लिन और स्पेशलाइजेशन डिड नॉट अप्लाई। मीन्स जिस चीज़ की वैकेंसी है उस चीज़ में ही आपका BA-BTech होना चाहिए, किसी और में है तो आपका वो कंसिडर नहीं होगा। ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 25,000 पर मंथ सैलरी है और ये आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 35,000 में भी ये आपका इंक्रीमेंट भी इसमें लग सकता है अकॉर्डिंग टू ईयर वाइज। यहाँ पे शायद ये मेंशन होगा मेरे ख्याल से। इन एडिशन टू एबव फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर ट्रेनिंग ऑफिसर प्रोजेक्ट कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ 10,000 per year will be paid toward expenses like medical insurance premium, attire allowance, stitching charges, footwear। मीन्स पर ईयर जो है आपका 10,000 एक्स्ट्रा आपको पे किया जाएगा। वो जो भी है आपका एक्स्ट्रा जो कन्वेंस वगैरह आपका लगेगा मेडिकल्स एट्सेट्रा दैट इज़। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सिलेक्शन क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है और सिलेक्शन कैसे होना है। तो आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो उस पर आपका वेटेज जो है 25% दिया जाएगा। सेकंड जो वर्क एक्सपीरियंस है इन दैट मैक्सिमम 10 मार्क्स विल बी गिवन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ एडिशनल रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस 1.25 मार्क्स विल बी अलॉटेड। द मैक्सिमम मार्क्स विल बी 10 मार्क्स। इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होना है एंड टोटल दैट इज़ 100 मार्क्स का, उसी में आपका सिलेक्शन होगा। आवेदन शुल्क यहाँ पे देख सकते हो क्या यहाँ पे जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए जो ट्रेनिंग इंजीनियर है उसके लिए 200 है और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए आपका है 500 और SC ST फिजिकली डिसेबल्ड के लिए कोई भी फीस नहीं है। पेमेंट लिंक आपको SBI iCollect पे जाके करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं जनरल कंडीशन भी आपका दिया हुआ है, ओनली इंडियन नेशनल नीड टू बी अप्लाइड। सिर्फ इंडिया के जो लोग हैं वही अप्लाई कर सकते हैं और किसी गवर्नमेंट वगैरह में ऑलरेडी वर्किंग है और वो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको NOC इंटरव्यू के टाइम में देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका को कंसिडर नहीं किया जाएगा। फिर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको मेडिकली फिट रहना है। बिल बी सब्जेक्टेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट बिल बी सब्जेक्टेड टू बीइंग फाउंड मेडिकली फिट बाय द कंपनी मेडिकल अथॉरिटीज़। आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है या एक फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाना है मेडिकल से और वहाँ पे एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आपको देना है। कोई भी सेपरेट कम्युनिकेशन जो सिलेक्ट नहीं होंगे उनको नहीं भेजा जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट हुई डिग्री सर्टिफिकेट डजंट टैली विद द ब्रांच मेंशन इन द एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इंटरव्यू। ये ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। बेल आपका जो है बेल रिजर्व से राइट टू डिवेयर यू एट एनी स्टेज ऑफ रिटन टेस्ट इंटरव्यू प्रोसीडिंग इफ योर कैंडिडेचर इज नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर एनी रीजन। कुछ भी आपका प्रॉब्लम लगता है तो बीच में ही आपको रोक दिया जाएगा इंटरव्यू से या रिटन टेस्ट से। कैंडिडेट हुआ अनएबल टू प्रोड्यूस जो भी है आपका फाइनल डिग्री, यदि इंटरव्यू टाइम तक आपका फाइनल जो भी है सर्टिफिकेट यदि नहीं मिल पाया है कॉलेज के थ्रू तो आप आगे के प्रोसीडिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। जो भी एडमिशन ये प्रोविजनल है। मेयर इशू ऑफ एडमिट कार्ड इंटरव्यू विल नॉट इम्प्लाई दैट हिज और कैंडिडेचर हैज बीन क्लियर्ड बाय बेल। जो भी आपका प्रोविजनली होगा, आफ्टर इंटरव्यू आपका भी जो भी रिजल्ट आएगा वो प्रोविजनल रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है होगा। कैंडिडेट हु आर डिजायरस ऑफ अप्लाइंग फॉर एवर पोस्ट एंड आर विलिंग टू बी पोस्टेड एट पैन इंडिया प्रोजेक्ट साइट में अप्लाई ऑनलाइन बाय क्लिकिंग द लिंक प्रोवाइडेड अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट ऑफ BEL। ये वाला जो लिंक है इस पर अप्लाई करना है आपको। लास्ट डेट 26 दिसंबर है। फिर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रखना है, सीनियर सेकेंडरी का मार्क्स शीट आपके पास होना चाहिए, फाइनल डिग्री होना चाहिए, रेलिवेंट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, एप्लीकेशन फ़ी का जो पेमेंट रिसिप्ट है वो आपके साथ होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 16 दिसंबर से। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन फ़ी का है वो 26 दिसंबर है। इंटरव्यू आपको जब भी होगा ये आपको थ्रू साइट आपको विजिट करते रहना और टाइम टू टाइम वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब बाकी इतना मेन इन्फॉर्मेशन था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि
काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने और मेहनत लगता है, तो यदि सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ जाएगा और अच्छे अच्छे